Good morning, students. In the last class, we have completed a topic, that is, what are the different funding options for the startup to raise capital, okay, in which we have studied the self-funding, crowdfunding, angel investment, venture capital for your business, raise money through bank loans, raise business loan from the NBFCs, means non banking financial companies. Next one is government programs that offers startup capital, in which we have studied the various program which is launched by the central government as well as the state government. And we have also started a topic, that is, what is IPR, intellectual property rights and entrepreneurship. So we have understand that the what is IP system and what is IPR. Okay, so IPR is divided into two, that is industrial property and the copyright. Okay, so industrial property is basically include the all the inventions, trademark, indication, and in the copyright, which include the literary and the artistic work. Okay, so the IP system as an assets for the innovative entrepreneurship we have already completed, and we have also seen that the intellectual property includes three: copyrights, patent, and the trademark. Okay, so copyright is basically related to the any literary work or the artistic work, and patent are for any novel, or the novel means new work, or for any kind of innovations. Trademark is a like a brand name. It is shown or the used through the or represent through the words or the symbol to identify and the existing any as well as the distinguish it from the another kind of product. Okay, so here we will take the example of the Nike, that the Nike has the trademark like. ओके, ठीक, तो ये सब हम लोग ने क्या है लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक, दैट इज स्मॉल बिजनेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल business. So small business enterprises exist in every country of the world, but in a developing country like India, small scale enterprises occupy a special place, as there is scarcity of capital and abundance of the labor, and small scale enterprises use labor intensive or the capital saving techniques. Okay, so as we already discussed in the economics, that the two kinds of intensives are there. First one is labor intensive techniques and capital intensive technique. Okay, capital labor intensive techniques means as we know that the most of the country and the most of the developing country like India has abundant amount of labor. Okay, हम ऐसी बेसिकली ऐसी कंट्री में देखते हैं जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, वहाँ पे जो लेबर होते हैं मीन्स वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अबंडेंट अमाउंट में होते हैं. तो वैसी कंट्रीज़ क्या करती हैं, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उनको प्रेफरेंस ज़्यादा करती है. मीन्स हम कोई भी टेक्नोलॉजी को, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू दी यूजिंग ऑफ द डिफरेंट लेबर्स. दिस इज़ कॉल्ड दी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मोस्टली इट इज़ फाउंड इन दी डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका. इसमें यहाँ पे क्या होता है कि इन कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर फंड्स, उनके फंड्स की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो वो लोग क्या हैं, इन कैपिटल में बहुत अबंडेंट होते हैं. तो वो लोग कोई भी अगर कमोडिटी उनको प्रोड्यूस करना होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना होता है, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, वो कैपिटल, कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल मतलब मोर एंड मोर फंड्स को इन्वेस्ट करके वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं. ओके, सो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव आर यूज्ड इन दी डेवलप्ड कंट्री and the labor intensive technologies are used in the underdeveloped or the developing country like India. Okay, so small scale
स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या है, हर एक कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस। ओके, इंडिया जैसी कंट्री में क्या है, जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या है, बहुत स्पेशल प्लेस उन्होंने टेकन किया है, एज देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। एज वी नो दैट द इंडिया हैज़ फेसिंग द लैक ऑफ कैपिटल। ओके, इंडिया में क्या है, लैक ऑफ कैपिटल है, स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल है, एंड अबंडेंस ऑफ द लेबर, और लेबर क्या है, बहुत अबंडेंट अमाउंट में है, मीन्स लार्ज अमाउंट में। एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज यूज लेबर इंटेंसिव और द कैपिटल सेविंग टेक्निक्स। और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में क्या होता है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा कमोडिटी लेबर्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, एंड कैपिटल सेविंग टेक्निक, और इसमें क्या होता है, कैपिटल को सेव किया जाता है। ओके, सो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल कंट्री में ही होती हैं, बट जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करती हैं, बिकॉज़ ये जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या है, इसमें बेसिकली स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल होता है, कैपिटल की स्कार्सिटी होती है, लैकनेस होता है, बट अबंडेंट अमाउंट ऑफ लेबर्स को यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है और कैपिटल सेविंग टेक्निक्स होती हैं, मीन्स कैपिटल को सेव करके मोर एंड मोर लेबर को हायर किया जाता है टू प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी। ओके, अभी बात यह है कि होती कौन सी स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस और स्मॉल बिजनेस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दी व्हाट इज़ द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल बिजनेस। Immediately after independence, small-scale industry was defined by the Industries Development and Regulation Act 1951 as any enterprises which employ not more than 50% when using power and 100 when not using power, and the capital assets not exceeding 5 lakh. Okay, so basically इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इसको डिफ़ाइन किया गया। इट इज़ डिफाइंड बाय द इंडस्ट्रीज़ IDRA, मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के थ्रू इसको डिफ़ाइन किया गया कि एनी इंटरप्राइजेस, कोई भी इंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50%, जो 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता है व्हेन यूजिंग पावर, जब उसके पावर कंट्रोल में है, एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, एंड व्हेन वो पावर को यूज़ नहीं कर रहा है, इन दैट केस 100 क्या होते हैं, उसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड विथ कैपिटल असेट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, और जो भी उनके असेट्स होते हैं वट एवर दे आर यूजिंग इट इज़ नॉट मोर देन दी 5 लाख, वो 5 लाख से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो एनी इंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50% when they are using power and 100 when they are using not power, and the capital asset, the asset of the small business should not be exceed more than 5 lakh. It is called the small business. Later on in 1959, 60, 66, 1975, 80 and 1990 was the definition was revised. Okay, in different particular period of time, 1959, 60, 66, 75, 80, 90, जो definition थी इसकी वो revised होती चली गई. Okay, yes, meaning and new classification of small business as per MSME D Act 2006, Micro Small Medium Enterprises Act. Okay, the full form is MSME is Micro Small Medium Enterprises Act 2006. According to that, the new nomenclature has divided, new small scale enterprises has divided that the new nomenclature and the classification of the micro small medium enterprises. Okay, इसका ये classification हुआ in which enterprise हुआ, enterprises को 2 में divide किया गया, that is manufacturing enterprises and servicing enterprises. Wait a minute, yes, okay,
enterprises. Further it is divided into two, that is manufacturing enterprises and service enterprises. Manufacturing enterprises means the one who are प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, मीन्स वो सारे इंटरप्राइजेस क्या करती हैं जो कोई भी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करती है. सर्विसेज मीन्स जो उन कमोडिटी जो प्रोड्यूस्ड हो गई हैं उनको आगे फर्दर मार्केट तक रीच आउट कराती, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी क्या होती हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्राइजेज डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन गुड्स को मार्केट तक रीच आउट कराने के लिए. तो उनको क्या किया, डिवाइड किया गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज इज़ देन सीलिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड दी प्लांट एंड मशीनरी. ओके, फिर ये बेसिकली क्या है, ये किस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे. और सर्विस इंटरप्राइजेज सीलिंग ऑन दी इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, ये बेसिकली जो भी टूल्स यूज़ होते हैं उन पे ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है. तो इन द केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, फॉर द माइक्रो इंटरप्राइजेज द लिमिट इज़ 25 लाख, मतलब जो 25 लाख तक इन्वेस्ट करेगा उसका जो वो क्या होगा आपका, जिसके कैपिटल असेट 25 लाख तक होंगे वो माइक्रो इंटरप्राइज होगा. जिसका 5 करोड़ होगा वो स्मॉल होगा, जिसके 10 करोड़ होंगे वो मीडियम इंटरप्राइज होगा. ओके, इन द केस ऑफ manufacturing enterprises. Okay, when we talk about the service enterprises, that is ceiling on investment in equipment, means जो investment किस पे कर रहे हैं वो लोग basically equipment पे कर रहे हैं. So for the in the case of micro enterprises the limit is 10 lakh. In the case of small the limit is 2 crore and the medium the limit is 5 crore. Okay, so on the basis of this the classification of micro, small, medium enterprises has done कि उनके क्या है कैपिटल असेट की वो कितनी उनकी एक सर्टेन लिमिट है. इस लिमिट के अकॉर्डिंग हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या है, कि इनको हम ये बोलेंगे कि ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं. सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स बेसिकली उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है इन द प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी में उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की कितनी लिमिट है. तो फॉर दी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्ट करते हैं इन द केस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज उनकी लिमिट है 25 लाख, फॉर द स्मॉल 5 करोड़ एंड फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेज द लिमिट इज़ 10 करोड़ एंड द मैक्सिमम लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता है उसकी क्या है 10 लाख फॉर माइक्रो, 2 crore for the small enterprises and the 5 crore for the medium enterprises. Okay, so it is divided. Now the next is what are the role of the small business in the rural areas. Okay, small business रूरल एरिया में रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है. ओके, सो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन दी रूरल एरिया. जो भी स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोवाइड दी फॉलोइंग बेनिफिट्स. वो कुछ फॉलोइंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर लेबर इंटेंसिव, so they provide additional employment to men and women. Next to agriculture, small business constitutes the most popular occupation of people of India. They also provide employment to agriculturists who remain idle during a part of year. Okay, so employment. Okay, so the small business also provide the employment opportunities to the people. Okay, so small scale enterprises are the labor intensive. Okay, ये क्या होती हैं, लेबर इंटेंसिव होती है, मीन्स मोर एंड मोर इसमें हम लोग लेबर को यूज़ करते हैं. सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मेन एंड वुमेन. तो ये क्या करती हैं, जो भी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक जगह जो काम कर भी रहे हैं या जो रूरल एरियाज़ में, ये बेसिकली क्या हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव होती हैं और ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं टू दी मेन एंड वीमेन. जिन्हें कोई भी वर्क नहीं है वो क्या कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं.
नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल कंस्टिट्यूट द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। ओके, अगर हम एग्रीकल्चर के बाद की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल बिजनेस क्या है, लार्जर कंट्रीब्यूशन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस एरिया। ओके, स्मॉल स्केल बिजनेस क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या है, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड किया है। दे ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट किसको प्रोवाइड करते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मीन जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया है। हु रिमेन आइडल ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, जो हु रिमेन आइडल, जो क्या है, खाली रहते हैं ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर, मीन्स अगर एग्रीकल्चर के टाइम में, एग्रीकल्चर में क्या है, ऑफ सीज़न हो रहा है, ऑफ सीज़न में उन्हें क्या है कि अगर उनके पास कोई भी वर्क नहीं है करने को, मीन्स क्रॉप का उन्होंने सो कर दिया क्रॉप को, अब उसके बीच में वो क्या है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस में भी they are able to get the employment opportunities over there. Okay, so the small business also provide to ample opportunities to the people for the employment. Next one is improves economic condition. By providing employment opportunities, the small scale industries provide more income to people living in the rural areas, which improves economic condition in village. Okay, so अगर क्या है, किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, मोर एंड मोर पीपल हैव देयर सम वर्क टू डू। अगर उनके पास कोई काम होगा तो दे विल गेट दी सम इनकम, उनको कुछ इनकम भी तो मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो काम करेंगे नहीं, तो उनको इनकम भी मिलेगी एंड दे कैन ईजिली फुलफ़िल देयर बेसिक नीड्स। वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं, एज वेल एज़ क्या है कि वो टोटल जो नेशनल इनकम की बात करते हैं हम लोग, टोटल इनकम में भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा अल्टीमेटली इकोनॉमिक कंडीशन भी सही करेगा। क्या, लेट्स सी, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड मोर इनकम टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जनरेट जैसे करेगा तो इससे क्या होगा, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, मोर इनकम प्रोवाइड करेगी पीपल हु आर लिविंग इन दी रूरल एरियाज़, जो रूरल एरियाज़ में लिव कर रहे हैं, विच इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन इन विलेज। वो क्या करेगा, इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूव करेगा, बिकॉज अभी क्या होंगे, जो सारे इंडिविजुअल हैं, जो रूरल पीपल हैं, दे ऑल आर एबल टू गेट सम मोर एंड मोर इनकम, एंड फ्रॉम दैट इनकम दे कैन यूज़ प्रॉपरली यूज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड फुलफ़िल देयर बेसिक नीड्स। वो अपनी बेसिक नीड्स को भी क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। Now the next one is promotion of artistic and creative sense. Small business set up in the rural areas provide small scale business set up in the rural areas provide scope for the promotion of the artistic achievement and creativity that has been suppressed in the rural areas. Okay, क्या होगा, स्मॉल स्केल बिजनेस में सेटअप इन दी रूरल एरिया, जो रूरल एरियाज़ में सेटअप होंगे, दे हैव प्रोवाइड दी स्कोप फॉर दी प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट। ये क्या करेगा, ये स्कोप प्रोवाइड किस में करेगा कि आर्टिस्टिक अचीवमेंट में। अभी पीपल क्या होंगे जिनके पास कोई अचीवमेंट है, मीन्स दे आर टू मच क्रिएटिव, कि वो क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग कर सकते हैं, पॉटरी बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कर सकते हैं, हैंडलूम्स के थ्रू, हैंड के थ्रू कुछ वो बना सकते हैं, तो उनको क्या है, एक प्रमोशन मिलेगा। उनकी जो भी एक इनर उनके पास अंदर वो क्रिएटिव हैं, वो उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, एंड क्रिएटिविटी दैट हैज़ बीन सप्रेस्ड इन दी रूरल एरिया, जो बेसिकली क्या होता है, रूरल एरियाज़ में कोई इसकी वैल्यू नहीं करता है कि ये सब का क्या कोई वैल्यू नहीं है, तो जो चीज़ें उस वहाँ पे सप्रेस्ड हो गई थी रूरल एरिया में, उसकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो अभी क्या होगा कि उन आर्टिस्टिक और क्रिएटिव जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज आर्टिस्टिक अचीवमेंट जो लोगों की और क्रिएटिविटी को दे कैन शो देयर क्रिएटिविटी, द बेसिकली ऑल दी रूरल पीपल, कि वो अपनी क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रूरल डेवलपमेंट।
Small scale industries set up in the rural areas lead to the development which may result in rural reconstruction, sustained growth, and removal of the regional disparity. Yes, small scale industry set up in the rural areas leads to their development. Okay, small scale जो industries होती हैं वो क्या होती हैं, rural areas में setup होती हैं which leads to their development. Okay, वहाँ पे क्या होता है, वो rural areas क्या development में helpful होती है which may result in the rural reconstruction, जिसके थ्रू क्या होता है, rural area का reconstruction होता है, means proper रोड की फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हो जाएगी, एंड सस्टेन ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी. इसके थ्रू क्या होगा कि जो रूरल एरिया है, जो रूरल में पीपल रह रहे हैं, उनका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. और जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, मींस लोग अर्बन की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, अर्बन की ओर लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन. इससे क्या होगा, ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी रिड्यूस होंगे. मींस रूरल एरिया भी क्या होगा, वो मोर एंड मोर डेवलप्ड होगा इफ़ मोर एंड मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैज़ सेट अप इन द रूरल एरियाज. नेक्स्ट वन इज़ mobilization of the local resources. Small scale industries facilitate mobilization and the utilization of the local resource which might otherwise remain unutilized. This help in tapping resources like entrepreneurial skill, small savings, especially in the rural areas. Okay, जो भी mobilization of local resources, जो भी resources अवेल हैं लोकल एरियाज़ में, उनका क्या होगा, मोबिलाइजेशन होगा. हाउ, लेट्स सी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर ओपन होंगी तो क्या होगा, इट फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, जो आज तक उनका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, दे हैज़ रिमेन idle there, they are not utilized properly. अब क्या होगा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हम करेंगे. ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज. क्या होंगी, नहीं तो वो अनयूटिलाइज्ड ही रह जाएंगी. दिस हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल, small saving, especially in the rural areas, which whatever it is more focuses on the कोई भी इंटरप्रेन्योर स्किल है, मीन्स जो भी कोई इंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसमें कुछ हो सकता है मे बी देयर आर टू मच, ही और शी इज़ टू मच क्रिएटिव, तो वो सारी रिसोर्सेज को उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकेंगे. और जो भी स्मॉल सेविंग्स की भी जो लोगों की एक हैबिट होती है, वी कैन ईज़िली यूज़ दैट ऑल्सो, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. Okay, so it is the role of the small business in the rural India कि रूरल इंडिया में small business का क्या रोल है. Okay, now the next topic is government assistance in the special schemes for the industries in the rural, backward and the hilly areas. Okay, government का assistance, government की help, and that there are different special schemes फॉर इंडस्ट्रीज़. ओके, इंडस्ट्रीज़ के लिए इन रूरल, बैकवर्ड एंड दी हिली एरियाज़. ओके, हिली एरियाज़ में और बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट ने किस टाइप के स्पेशल स्कीम्स प्रोवाइड की है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया है फॉर द इंडस्ट्रीज़ दे आर इन दी रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़. जो बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, उनको गवर्नमेंट ने किस टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड किया है. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑल दीज. कीपिंग इन व्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द SSI टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड वेरियस पॉलिसीज़ एंड ऑफर्ड वेरियस incentives and benefits for growth and promotion of small scale business at central level as well as
state level. The government assistance was translated into action through various agencies, department, corporation, etc. Some of these support measures and the programs meet for the promotion of small and the rural industries are grouped in the following categories. Following two categories, that is institutional support and incentives offered by the government to small scale industries. Okay, so keeping in view the contribution of SSI to employment generation. Okay, keeping in view the contribution of small scale industries to employment generation, balance regional growth, promotion of export, the government of India has formed various policies. Okay, कंट्रीब्यूशन जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रीजनल ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोर्ट भी प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स होते हैं जो भी वो अदर कंट्री में भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड वेरियस पॉलिसीज़. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बहुत पॉलिसीज़ को फॉर्म किया है एंड ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव्स, और डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किए हैं एंड बेनिफिट्स फॉर द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस. ठीक है, क्यों? बेसिकली फॉर दी ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस. स्मॉल स्केल बिजनेस का ग्रोथ और प्रमोशन के लिए एट सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल पे भी बात की है और स्टेट लेवल पे भी बात की है. द गवर्नमेंट असिस्टेंस आर ट्रांसलेटेड इनटू द एक्शन थ्रू वेरियस एजेंसी. ओके, जो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ थ्रू दी डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज़, डिपार्टमेंट एंड कॉरपोरेशन. ओके, बहुत सारी एजेंसीज़ के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू और कॉरपोरेशन के थ्रू क्या कर रहा है, गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. Some of the support measures and the program mean for the promotion of small and rural industries are grouped into the following categories. Okay, कुछ ऐसे जो support measures and programs है which is provided by the government is divided into two categories. That is, first one is institutional support, means through institutions support are provided to the small scale industries, and incentives which is offered by the government to SSI. Okay, so there are different incentives which is offered by the government. Government क्या करती है, ऑफ़र करती है different types of incentives to the small scale industries. Okay, so what are they are? So first one is institutional support. First one is National Small Industries Corporation, NSIC. This was set up in the 1955 with a view to promoting and fostering the growth of small scale industries in the country. Okay, ये कब सेटअप हुआ था? It is called National Small Industries Corporation, NSIC. Okay, this was set up in the 1955. 1955 में क्या हुआ था, establish हुआ था with a view to promoting and fostering the growth of small scale industries in the country. क्यों हुआ था कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रमोशन और उनके ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, बेसिकली जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रमोशन और इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द rapidly increasing the growth of the small scale industries in the country. So this its main focus was on, first one is to supply indigenous means domestic goods, to supply indigenous and imported machines in the easy installment, कि जो भी indigenous goods हैं उनकी सप्लाई और imported machine, जो भी हम goods को machines को import कर रहे हैं अदर कंट्री से, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो मशीन जो है वो क्या हो, ईजी इंस्टॉलमेंट में मिले. मींस अगर कोई भी एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ परचेज़ करना चाह रहा है कोई भी मशीन, तो वो इंस्टॉलमेंट में, मींस अगर वो 10 लाख की मशीन है तो वो फ्रीक्वेंटली या रैंडमली उसको 10 लाख नहीं देना पड़ेगा, वो उसको कुछ पार्ट में करके देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लाख है तो वो साथ ना देके उसको 20,000 और 50,000 के अप्रॉक्स वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट में देगा, एक साथ वो पेमेंट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़
टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, ठीक है, सब किस चीज़ की, जो भी रॉ मटेरियल है उनको क्या करना, अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई दी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट मीन्स कि उनकी अवेलेबिलिटी, जो भी रॉ मटेरियल है उनको प्रोवाइड कराना। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द एसएसआई, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कमोडिटी प्रोड्यूस हुई हैं उनको आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करना। टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज, मीन्स किसी को अगर कोई भी एसएसआई को एडवाइस की ज़रूरत है या उनको मेंटर की ज़रूरत है कि जो उनको वॉच करे कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड दी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, किसी भी एसएसआई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वो प्रोवाइड करना। टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उन्हें क्या करना, कोई जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होगा टेक्नोलॉजी में वो प्रोवाइड करना। एंड दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ओके, कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र होंगी। सो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ विल प्रोवाइडेड बाय दी NSIC, okay. A new scheme of the performance and the credit rating of the small business is implemented through the NSIC with following two in objective, okay. इसके two basic objective थे, क्या थे, sensitizing small industries about the need of the credit rating, means कि जो भी अवेयर करना और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अबाउट दी नीड ऑफ द क्रेडिट रेटिंग की, उन्हें क्रेडिट की जो रेटिंग है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करना। एज वेल एज इनकरेजिंग एसएसआई टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, और जो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनकरेज करना कि मेंटेन दी गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, वो अपने जो उनका फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी उनका रिकॉर्ड है वो उसको प्रॉपरली मेंटेन किए रहे। मींस अगर वो लोन ले रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो ईज़िली एज वेल एज टाइमली उसको क्या करे, पेड कर दे, तो उनका रिकॉर्ड क्या होगा, वो गुड कंडीशन में होगा। तो कोई भी कंपनी या कोई भी उनको इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं, दे कैन ईज़िली प्रोवाइड दी अ लोन टू दी दैट SSI, okay. So these all are the some institutional support, some institutional support which is provided by the National Small Scale Industries Corporation, okay. So it's all about your today's class. We will continue further in